Assalamu alaikum, dear parents and my beloved students. I hope you're all doing well. First of all, I would like to congratulate the new class ninth, the new ninth, those students who have been recently promoted to grade ninth from eighth. And I wish you all the best for your new classes. Inshallah, from 19th of April, you will be attending your regular classes in school. Your notebooks should be ready by then. Kindly purchase your notebooks. They are available in the school as well. And again, if you want to get them from the store, you can always go to the store, the vendor, official vendor, and you can get the notebooks from them. Also, get the diaries. Wish you all the best again for class the new ninth. So your group names have been changed from class 8th to class new ninth. Again, congratulations to your parents, to your families, and to all the students. Some of the students have been passed on conditional basis because it was result based. So you have to work hard और इस पे मेहनत अपनी जारी रखें. We are with you और इंशाल्लाह once you are regularly attending school तो आपका जो डेली आपका स्केड्यूल है उसके हिसाब से प्लीज़ काइंडली write down your notebooks, complete your notebooks. जो आपका पैटर्न है always follow the pattern for that. आपकी margin lines, markers, stationaries, everything should be ready by then. Uh, Before 19th April, you will be having your online Zoom sessions and PDF formats will be sent also. How to prepare your notebooks and what stationery to get, like some of the markers, specific markers, जो भी कुछ हैं, या ink pens, blue pens, rulers, small ruler, large ruler, transparent rulers, जो भी आपकी stationery list है, that will also be provided in your WhatsApp groups. So for all the parents, and if the students want to attend this session, we have kept an orientation for the parents to guide them on how to go about for the new ninth now, because soon you will be registered for your annual examinations that will be commencing next year, uh, maybe April, maybe May. Let's see कि क्या होता है, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, but definitely this year you will be registered for class 9 in the bicep. So your orientation is on Monday. This orientation is specifically for the parents. We want to guide you कि हम किस तरह पढ़ाते हैं, what visual and other aids we have. We want to show you around, we want to show your classes. We have prepared a very well prepared presentation on PowerPoint. We will be providing leaflets also, circulars, जिसमें पेरेंट्स के जितने क्वेरीज हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, एनीथिंग दे वांट टू, इट्स बेसिकली अ पीटीएम and an orientation both at the same time. So you have to attend that. Please make sure कि मंडे को 11 o'clock 11 बजे आप ये orientation attend करें. This is for all the class 8 that has been recently promoted to class 9th. So बोर्ड के आप बच्चे बनने वाले हैं, soon you will be registered for that. We have to get serious regarding your studies. So it's time to now guide your parents and students at the same time. And because now you're entering the secondary section, so you'll get to meet your teachers also, your new coordinator also. So best of luck for all of that. Now coming to the preschool and class 1 to 7, the primary and the elementary section. So you are being given the revision test that was being given since Monday. This revision test is just a test because, as you know, when the schools were locked down once again due to COVID-19 outbreak, we were having a revision test. Everywhere, every year, हम लोग एक महीना पहले we have this like for many years कि 1 month before the examinations हम लोग अपना एक revision test schedule बनाते हैं for 1 complete month, and everything is revised for the final term so that the students are fully ready for the final examinations और उनके अच्छे से अच्छे marks आए. And we would like to do that this year again. Although we having a revision test once the schools were opened, but because a sudden announcement हुई and nobody was ready for that, so we made a revision test for home.
Most of the students have taken that. इसके अलावा नाजरा भी आपका हमने ऑनलाइन लिया है थ्रू जूम, थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स. एंड अगेन फॉर प्री स्कूल, I will be starting from preschool. Most of the parents have questions, confusions, and queries for preschool. Okay, so for preschool, there are going to be two type of exams. There is going to be a written exam and then an oral exam. For example, on Monday you are going to have, on 12th April, Monday, you are going to have your English test. So you are going to attempt the written English test at home under your parents' supervision. If your parents are busy, you can your older siblings can guide you, your relatives can guide you, even your tuition teacher can guide you. But make sure you attempt the paper yourself. आपने पेपर खुद करना है, आप अपनी हैंड राइटिंग में पेपर अटेम्प्ट करना है. इसमें किसी भी तरह की चीटिंग नहीं होनी चाहिए. ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग योर पेपर्स यू हैव टू सेंड योर पिक्चर्स ऑल्सो. वी वांट टू सी कि आप पेपर खुद से अटेम्प्ट कर रहे हैं. फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ प्ले ग्रुप एंड नर्सरी, जो भी घर में बड़े हैं, प्लीज राइट डाउन देयर नेम, क्लास एंड सेक्शंस ऑन द पेपर. जो प्रेप के बच्चे हैं, दे कैन राइट देयर नेम्स. They know how to write their names, they know how to write down the date, they know how to write down the day also. So 2 papers a day हमारा इस तरह से schedule चल रहा है और इसी तरह से रहेगा. अब 2 papers किस तरह से है? Once आपका एक हो गया English written, that will be given for home. The students will be attempting that paper at home. The second part is going to be an oral quiz. अब oral quiz क्या होगा जी? That is going to be quiz regarding your reading, your phonics, your vowels. Uh, we are basically going to check your reading skills. अब reading skills हमारे पास the best option is, I would again request, last webinar में भी आपको मैंने request की थी कि देखें जो सबसे best हमारी teachers के लिए इस वक्त option है ना, that is Zoom, because Zoom has the maximum number of participants जो at a time आ सकते हैं, and the teacher she can take the quiz easily at the same time. कि अगर पूरी पूरी क्लास या इवन हाफ क्लास भी उसमें एट अ टाइम ऑनलाइन होती है, द टीचर कैन इजीली टेक द क्विज फॉर इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, नाजरा, वट एवर द सब्जेक्ट इज. बट अगेन जो बच्चे जूम पे अवेलेबल नहीं हो सकते, ऐप का प्रॉब्लम है, डाटा का प्रॉब्लम है, इंटरनेट का इशू है, फादर घर पे नहीं है, या जो भी वट एवर योर इशू इज, वी अंडरस्टैंड. सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप video calls की option रखी है. WhatsApp can accommodate around 7 to 8 students at the same time, including the teacher. So if you are unable to attend the Zoom class, तो हम आपके लिए फिर WhatsApp video calls की एक option रखेंगे. WhatsApp video calls पे multiple participants को call की जाएगी. The teachers are going to ask you questions live. Okay, now what is the reason behind all this? Last year, midterm examinations, they were again given for home. These are also called the open book exam. So parents, कुछ parents ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों ने खुद अटेम्प्ट किया है, वी आर नॉट श्योर कि किसी और ने किसके पेपर अटेम्प्ट किए हैं, ओल्डर सिबलिंग ने किए हैं, ट्यूशन टीचर ने किए हैं, पेरेंट्स ने किए हैं, कौन कैसे बता सकता है? Although being in this profession for so long, we know, we understand कि बच्चे की राइटिंग कैसी है, हमें अपने स्टूडेंट्स का पता होता है. सो जहाँ राइटिंग चेंज होती है, वी नो दैट, और हम थोड़ी बहुत, मैं आज आपको बता रही हूँ कि इसमें हम मार्क्स की कटिंग भी करते हैं. लेकिन बात फिर यही आ जाती है कि दिस ईयर वी आर फुली प्रिपेयर्ड कि अगर बच्चे ने घर में रिटन पेपर अटेम्प्ट किया है, तो वही रिटन पेपर में से कुछ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड लाइव ऑन जूम क्लास और ऑन योर व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स. सो द रीजन बिहाइंड दिस ब्लेंडेड एग्जामिनेशन इज कि पेरेंट्स, वो पेरेंट्स स्पेशली जिन्होंने पूरे साल, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे साल स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल लास्ट ईयर जो फुली हमारे साथ काम करते रहे हैं, सबमिशंस कराते रहे हैं. आई होप मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे हैव डन, आई थिंक दे वर लाइक 3 or 4 समर टास्क. इतना ज़्यादा लॉकडाउन प्रोलॉन्ग था 6 months का. We had given multiple summer tasks. The midterm examination was also given for home. So जिन जिन बच्चों ने ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट की हैं, definitely they will get advantage in their positions also. एंड अगेन अगर हम जो भी सर्टिफिकेट्स देंगे बेस्ट परफॉर्मेंस के या एक्सीलेंस के, या हम ट्रॉफीज देंगे, शील्ड्स देंगे, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू काउंट.
So again, this is a request to all the parents, especially the preschool parents. Kindly come and take your midterm revision test and your final examinations. Final examinations will be available from Monday onwards, and your revision tests are ready. They are printed, they are ready. The teachers are working very hard. देखिए आप जितना लेट लेके जाते हैं ना, it is very difficult for the teacher to check that also, because we have to check the papers and we have to compile the result. फिर उसकी प्रूफ रीडिंग होती है और उसके बाद वो रिपोर्ट कार्ड और डीएमसी एक अलग अलग जो पेरेंट्स रेगुलर हैं, जो न्यू एडमिशन्स हैं, उनको मैं ये बता रही हूँ, जो रेगुलर हैं दे नो that for the final examination they get a DMC, a printed DMC, and for the whole year you get a final term report. तो फाइनल टर्म रिपोर्ट में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, उसमें कॉपी मेंटेनेंस मार्क्स होते हैं। अगर बच्चों ने समर टास्क किया है, अटेम्प्ट किया है, समर टास्क के मार्क्स होते हैं। इसके अलावा जो मिड टर्म एग्जामिनेशन हुआ था उसके मार्क्स होंगे। मिड टर्म एग्जामिनेशन के साथ आई होप यू ऑल रिमेंबर कि वी आल्सो हैड एन ऑनलाइन एग्जाम ऑन गूगल फॉर्म्स। उसके भी मार्क्स हमारे पास हैं। जिन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है दे विल डेफिनेटली गेट एन एडवांटेज। अगर नहीं किया तो डोंट वरी, इफ यू आर अ न्यू एडमिशन डोंट वरी, हम आपको उस पर कंसिडर नहीं करेंगे, यू विल गेट सेपरेट अवार्ड्स। एवरी स्टूडेंट हैज वर्क हार्ड, और जिसने काम किया है, जिसने पूरे साल हमारे साथ मौजूद रहे हैं, काम किया है, वी विल डेफिनेटली गिव देम एन एडवांटेज as soon as we are done with the annual examinations and the result, नेक्स्ट डे ही मोस्ट प्रॉब्ली, और वील मेक श्योर कि हम इन्हीं दिनों में जो रिजल्ट होगा, जो हमारे पोजीशन होल्डर्स होंगे दे विल बी गेटिंग देयर शील्ड्स आल्सो। although every year last year also we were waiting for the annual function, हम चाह रहे थे कि हम एनुअल फंक्शन में प्री स्कूल को डिप्लोमा भी दें, और जो बच्चे बिहेवियर वाइज जो पूरे साल सबसे बेस्ट रहे हैं, जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते रहे हैं, we wanted to give them awards, certificates, but due to the lockdown we were unable to do that. This year we are going to do all of this. हम इनको शील्ड्स भी बना के देंगे, जो पोजीशन होल्डर्स होंगे इनको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। पूरे साल जो बेस्ट अटेंडेंस होगी उसके ऊपर भी होगा, जो बच्चे बेस्ट बिहेवियर वाले होंगे उनके ऊपर भी होगा, जो सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म और क्लेanलीनेस का जिन्होंने ख्याल रखा होगा उसके ऊपर भी होगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑल राउंडर्स होते हैं, दे आर गुड इन स्टडीज, दे आर गुड इन ओवरऑल एक्टिविटीज एज वेल, लाइक असेंबलीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। जो हेड ऑफिस की तरफ से कॉम्पिटिशन्स आते हैं वो उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। सो एवरी चाइल्ड whoever has done anything, जो भी एक्स्ट्रा काम किया है, we have all the record for the last year. So हम चाहते हैं कि this is the time that we are going to give them uh, some sort of appreciation. So इस appreciation के लिए नंबर वन तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, स्पेशली द प्री स्कूल पेरेंट्स, प्लीज बी सीरियस, टेक योर रिविजन टेस्ट। और अगर आप अपनी टीचर से पूछ लें, अगर आपके फाइनल एग्जाम्स रेडी हैं, दे हैव बीन प्रिंटेड, प्लीज टेक देम आल्सो। while your child is attempting the paper at home, please send me pictures. अगर मेरे पास नंबर मेरा नंबर नहीं है तो ऑफिशियल नंबर पे भेज दें, अगर ऑफिशियल नंबर नहीं है क्लास टीचर के नंबर से आपके पास, सेंड देम पिक्चर्स, मेक शॉर्ट वीडियोस भी बनाएं अच्छी सी, पिक्चर्स भी लें, इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलती है। वी आर गोइंग टू पोस्ट देम ऑन फेसबुक। अगर आप कोई अच्छी सी वीडियो बनाना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू पोस्ट दैट वीडियो ऑन यूट्यूब ऑल्सो। सो एग्जाम्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एज यूजुअल, जो आपके साथ हमने डेट शीट शेयर की है, फ्रॉम 12th मंडे टिल 15th। रोज आपने बच्चों को 2 पेपर रिटन अटेम्प्ट करवाने हैं। अब बात ये आ जाती है, ड्यूरिंग द डे टाइम वी आर गोइंग टू हैव एन ऑनलाइन क्विज। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि सुबह के टाइम आप बच्चों को ज़रा जल्दी उठाएं। देखिए वैसे भी रमज़ान आ रहा है वेरी सून इंशाल्लाह, तो उसमें हम लोगों को चाहिए कि हम ज़रा थोड़ा सा और एक्टिव हों, थोड़ा सफाई सुथराई का ख्याल रखें, थोड़ा सा अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं, बच्चों को भी अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाएं। आई वुड रिकमेंड कि बच्चों को प्लीज़ यूट्यूब या गेम्स ना दिया करें फ़ोन के ऊपर। सिर्फ आपका जो भी व्हाट्सएप का काम है, जैसे अगर मैं अपनी बेटी को, फॉर एग्जांपल मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि अगर मैं अपनी बेटी को काम करवा रही होती हूँ तो मैं अपना फ़ोन उठा के जो ग्रुप में होमवर्क आया होता है या क्लास वर्क होता है, मैं एक पेपर पे लिख लेती हूँ, एंड देन आई डोंट यूज़ माई फ़ोन, आई डोंट इवन गिव माई फ़ोन टू माई डॉटर। इस तरह से अनसुपरवाइज्ड मैं फ़ोन नहीं देती। मैंने अपने फ़ोन पे जो यूट्यूब है मैंने वो डिलीट किया हुआ है। मैं आई डोंट हैव टिकटॉक ऑन माय फ़ोन।
तो ये प्लीज़ बच्चों की जो गेमिंग की हैबिट है, यूट्यूब देखने की हैबिट है, प्लीज़ ब्रेक दिस हैबिट। फ़ोन यूज़ेज जो है वो कम से कम रखें। अगर ग्रुप में हम होमवर्क भेजते हैं, दिस इज़ फॉर यू, स्पेशली द प्री स्कूल एंड प्राइमरी सेक्शन। बच्चे बहुत छोटे हैं। यूट्यूब पे या तो फ़िल्टर्स लगाएँ या पैरेंटल कंट्रोल करें। अगर बच्चे बहुत आपको तंग करते हैं, इनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में बिज़ी करें, इनको कुछ अच्छी हॉबीज़ लें। इनको हॉबीज़ इनकी स्टार्ट करवाएँ, बुक रीडिंग स्टार्ट करवाएँ। इसके अलावा आप जो पेरेंट्स अलाउ कर सकते हैं, यू कैन इवन कीप पेट्स। तो रमज़ान में ज़रा हमने अपनी रूटीन का ख़्याल रखना है। बच्चों को ये ना हो कि ये सहरी करके जो बच्चे रोज़े रख रहे हैं तो वो पूरे दिन सोते रहें, सोते रहें, सोते रहें और इफ्तारी के टाइम पे वो जाग रहे हों। तो ऐसे रोज़े का तो फ़ायदा नहीं ना कि रोज़ा रख के आप पूरे दिन सोते रहें। आपने इबादत भी करनी है, नमाज़ भी पढ़नी है, कुरान पाक भी पढ़ना है एंड यू हैव टू गिव योर फाइनल एग्ज़ामिनेशंस ऑल्सो। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। See, we have been working uh, together as a team. The teachers, the parents, and the students. They have been working as a team since the last year. So this is the chance that the students will get a chance to get promoted to the next level. ये आपके पास अभी एक चांस है कि बच्चों को नेक्स्ट उनकी क्लासेस में प्रमोट करवाएं, उनके सारे रिवीजन टेस्ट दिलवाएं। अगर कॉपीज अनचेक्ड हैं, इनकम्प्लीट हैं, प्लीज ब्रिंग देम टू स्कूल। वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। टीचर्स आर हेयर टू चेक योर वर्क। टीचर्स आर हेयर टू गाइड यू। कोशिश हमारी यही होती है कि हम हर पेरेंट की क्वेरी का जवाब दें, वॉइस मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या कॉल्स के थ्रू। बट समटाइम्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम पूरे स्कूल के पेरेंट्स को इंडिविजुअली रिप्लाई कर रहे हों, ऑल्दो वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम करें। बट समटाइम्स आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे ऊपर भी लोड होता है, तो हम नहीं कर सकते, इसीलिए वी यूज़ द ग्रुप्स। वो ग्रुप्स में हम आप लोगों को भेजते हैं और वहाँ से आप लोगों को हम अपडेट करते रहते हैं कि आप लोग इजीली जो है आप इजीली जो है हर तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछ सकें। या अगर आपको कोई क्वेरी है तो ऑफिशियल सेल पे मुझे या क्लास टीचर को, किसी को भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है वो करें। अच्छा, रिगार्डिंग द क्विज, प्री स्कूल का मैंने आपको सारा बता दिया। प्लीज़ बी सीरियस नाउ। बच्चों का टाइम वेस्ट ना करें, इनकी एज ज़्यादा होती जा रही है। जो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि नर्सरी हम रिपीट कराएंगे या पीजी हम रिपीट कराएंगे, क्यों रिपीट कराएंगे? बच्चों की एज क्यों आप बढ़ाना चाहते हैं? इफ अ चाइल्ड कैन इजीली प्रमोट गेट promoted in the next class, why don't you do that? पेपर इज वेरी इजी। ये पेपर बना ही इस वजह से है बिकॉज ऑफ कोविड-19। स्टूडेंट्स वर अनएबल टू अटेंड स्कूल रेगुलरली। तो बच्चों का जो रिटन स्किल्स है ना, दे आर वीक राइट नाउ। वी हैव टू वर्क ऑन दैट। As soon as the schools are open, we have to work on the reading and writing, especially the writing skills of our students. उसी को देख के जो पेपर पैटर्न है, that has been changed from class 1 to 7. The main part is the objective part. Objective part may mostly we have MCQs, multiple choice questions. You have to choose the best option. Then some of the papers they have fill in the blanks, and the languages they also have a short question and answer and a subjective part, जो कि बहुत कम marks का है. 50 marks is for your notebooks. जो पूरे साल जिन बच्चों ने नोटबुक्स पे काम किया है, अच्छा काम किया है, प्रेजेंटेशन उनकी अच्छी है। इसके अलावा उन लोगों की मिड टर्म की सबमिशंस हुई हुई हैं, उनकी रिवीजन वर्क्स, सारे रिवीजन टेस्ट में उनके अच्छे मार्क्स आते रहे हैं। टीचर्स हैव ऑल द रिकॉर्ड। तो रिवीजन टेस्ट जो फाइनल एग्जामिनेशंस की मैं बात कर रही हूँ, जो बच्चे स्कूल में देते रहे हैं और रिवीजन टेस्ट जो अब बच्चे लेके जा रहे हैं, सो रिवीजन टेस्ट के मार्क्स भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। 50% मार्क्स एग्जामिनेशन के होंगे, फाइनल एग्जाम्स, एंड 50% मार्क्स इन चीज़ों के होंगे, समर टास्क, विंटर टास्क, रिवीजन टेस्ट, नोटबुक्स, एवरीथिंग। जो बच्चा पूरे दिन पूरे साल एक्टिव रहा है, जाहिर सी बात है कि उसको फिर प्रिविलेज मिलना चाहिए। ऑल्दो जो न्यू एडमिशंस हैं, डोंट वरी, वी हैव अदर प्लान्स फॉर ऑल ऑफ यू, डोंट वरी। आप लोगों के जो मिड टर्म का, अगर आप उसके बाद आपने न्यू एडमिशन करवाया है, सो डोंट वरी, हम आपका मिड टर्म उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा हम आपको जो भी आपकी पोजीशन बच्चों की बन रही होगी, इसके अलावा हम करेंगे। One more request. As soon as you are done with the written examination, kindly 16, 17, that is Friday and Saturday, kindly submit करें, because आपको पता है कि रमज़ान शुरू हो चुका होगा और टीचर्स ने ये पेपर्स चेक भी करने हैं, रिजल्ट भी बनाना है। They have to check the revision test, they have to check the papers. So kindly जितनी जल्दी हो सके आप फ्राइडे, सैटरडे 16th and 17th
ऑफ अप्रैल आप ये पेपर सबमिट कराएं, बिकॉज वी हैव टू लाइक वी आर वर्किंग वेरी हार्ड कि हम 23 मार्च तक रिजल्ट आपका अनाउंस कर दें। बच्चों को प्रमोट कर दें, जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनकी हम शील्ड्स उनको दें, उनकी पिक्चर्स लें, उनको प्रॉपर तरह से एक सेरेमनी के साथ हम उनको मोटिवेट करें फॉर देयर नेक्स्ट क्लास। और बाय 26 वी वांट टू स्टार्ट द न्यू सेशन। डिसीजन भी आना है गवर्नमेंट का, डिसीजन गवर्नमेंट के चेंज होते रहते हैं, ओवरनाइट चेंज होते रहते हैं, सो वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन दैट। 26 अप्रैल से न्यू सेशन शुरू होगा। अगेन न्यू सेशन इसी तरह से शुरू होगा कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक थिंग्स, लाइक हाउ टू प्रिपेयर योर नोटबुक। नोटबुक के ऊपर नाम कैसे लिखना है, मार्कर से लिखना है, पॉइंटर से लिखना है, उनको कवर करना है। अगर आप एलाइट की नोटबुक्स परचेज नहीं कर रहे हैं, कोई और ले रहे हैं, तो प्लीज़ काइंडली उनको भी कवर करें, उनके ऊपर अपने नाम लिखें, सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका टर्म होना चाहिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको कंटेंट्स जो हैं फॉर द न्यू कमिंग सेशन, आपका जो फर्स्ट टर्म है उसके कंटेंट्स हम आपको प्रोवाइड कर दें सब्जेक्ट वाइज। जो बड़े बच्चे हैं 4 क्लास ऑनवर्ड्स, दे कैन पेज देम इजीली इन देयर बुक्स, सॉरी नोटबुक्स। इसके अलावा जो कुछ बुक्स की बेसिक एक स्ट्रक्चर एक नोटबुक का होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी फॉलोड, कि आपकी डेट कहाँ पर होनी चाहिए, डेट का पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपकी जो टॉपिक है, यूनिट है, क्लास वर्क है, होमवर्क है, दैट ऑल्सो हैज़ टू बी मैंशनड, एंड द डे, ट्यूसडे, मंडे, सैटरडे, जो भी आपका डे है, दैट ऑल्सो हैज़ टू बी मैंशनड। सो टीचर्स विल बी सेंडिंग यू दोज पैटर्न्स, उस पैटर्न के हिसाब से नेल्सन स्क्रिप्ट भी आपने लगाना है, आपने फर्स्ट टर्म का टैग्स भी लगाने हैं। सो हमारा जो फर्स्ट वीक होगा, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर नोटबुक्स फॉर दैट। और साथ ही हम आपको ना एक री भी करवाएंगे। तो री इस चीज़ की होगी क्योंकि जो भी चीज़ें फर्स्ट टर्म में गुजर चुकी हैं, बच्चे शायद अभी तक भूल चुके हैं, दे आर आउट ऑफ टच। सो हम एक आपको ओरिएंटेशन भी आप पेरेंट्स की रखेंगे, जैसे कि हम क्लास अब न्यू नाइन्थ जो भी अभी रिसेंटली प्रमोट हुई है, जैसे कि इस मंडे को इनकी ओरिएंटेशन है, सून वील बी स्टार्टिंग द ओरिएंटेशन सेशंस फॉर द होल स्कूल, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री स्कूल टिल क्लास 7। हम ओरिएंटेशन सेशन सब लोगों का रखेंगे। इसके अलावा बिकॉज ये क्विज बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि जी क्विज क्यों हो रहा है। क्विज इस वजह से हो रहा है, अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि देखें, जब हमारे बच्चे क्लास 5 में 4 में आते हैं, दे नो इट वेरी वेल दैट इनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है, असेसमेंट के साथ भी होता है, एग्जामिनेशन के साथ भी होता है। सो दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दिस इज एन इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, के बच्चे पेपर तो अटेम्प्ट कर रहे हैं घर पर, ओपन बुक एग्जाम एक हो गया ना, वी डोंट नो, हम आपके घरों में तो नहीं है, चलिए ठीक है, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत कोऑपरेटिव हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो ट्यूशन सेंटर्स पे उन्होंने उनको बच्चों को छोड़ा हुआ है, या ट्यूशन टीचर्स में भी समटाइम्स बच्चों के साथ ऐसे कर लेती है, या अनसुपरवाइज छोड़ देते हैं, तो बच्चे में भी नोटबुक को खोल के या रिवीजन टेस्ट को खोल के कहीं से भी आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ सकते हैं। सो दिस क्विज इज टू मेक श्योर कि बच्चा जो है वो एग्जाम के लिए रेडी था कि नहीं, क्योंकि क्विज लाइव पूछा जाएगा। अभी आज से शुरू हो गया है क्लास 1, 2 एंड 3 का, टीचर्स आर टेकिंग क्विज। सो दिस क्विज इज टू मेक श्योर कि आपके बच्चे जो हैं दे आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, एंड टू मेक श्योर कि दे हैव अटेम्प्टेड द पेपर देमसेल्व्स, दे आर फुली प्रिपेयर्ड, मतलब ये रिविजन टेस्ट भी करते रहे हैं, दे हैव बीन स्टडिंग एट होम थ्रू आउट, ये ट्यूशन पे भी जाते रहे हैं, ये रिविजन टेस्ट भी देते रहे हैं। तो ये जो क्विज के क्वेश्चंस हैं, they will be from your revision test, maybe from your final examination, or maybe from your copies, जहाँ पे आपके revisions होते रहे हैं MCQs के, fill in the blanks के। So these are going to be MCQs, objective part होगा। और जो बच्चे Zoom पे पेयर नहीं हो सकते, don't worry, we are here to accommodate you, we are going to call you on WhatsApp, मेक श्योर कि आप WhatsApp की कॉल ज़रूर पिक करें। टीचर्स आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, प्लीज़ उनका मोराल भी आप लोग डाउन ना करें, बिकॉज एंड ऑफ द डे दे गेट वेरी, मतलब बहुत अफसरदा हो जाती हैं कि मैम वी आर वर्किंग वेरी हार्ड बट द स्टूडेंट्स दे आर नॉट गेटिंग सीरियस। सो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू कि हमारा साथ दें इस चीज़ में। आप जितना पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उतने ही बच्चे इन्वॉल्व होंगे, जितना आप इस सीरियसनेस का बच्चों को यकीन दिलाएंगे, बच्चे भी उतना ही सीरियस होंगे। दिस इज द फाइनल एग्जामिनेशन, पूरा साल जो हम स्ट्रगल करते रहे हैं, दिस इज द एंड नाउ, फाइनल एग्जाम्स। सो अगेन आपको यही मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगी कि
रिवीजन टेस्ट अगर नहीं लिए, आज भी स्कूल ओपन है, 2 बजे तक खुला हुआ है। प्लीज कम, टेक योर रिवीजन टेस्ट, दे आर वेरी इजी। घरों में अटेम्प्ट कराएं, कोशिश करें मंडे को सबमिट करा दें, ओवर द वीकेंड करवा के मंडे को सबमिट कराएं। अगर किसी बच्चे का नाजरा रह गया है, डोंट वरी, आप मुझे वीडियो बना के भेज दें या अपनी टीचर को वीडियो बना के भेज दें, वी आर गोइंग टू ऐड योर मार्क्स। प्री स्कूल का जो नाजरा और ओरल है, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। जिस दिन जो पेपर होगा, इंग्लिश का अगर पेपर है तो इंग्लिश का रीडिंग और डिक्टेशन का टेस्ट होगा। इसी तरह से अगर उर्दू है तो उर्दू का रीडिंग और डिक्टेशन का होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स का पेपर है, सो वी आर गोइंग टू टेक योर ओरल टेस्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, अ टीचर कैन आस्क क्वेश्चन regarding missing numbers, before and after numbers, or 2D shapes, name any two 2D shapes or three 2D shapes. तो ये सारा सिलेबस आपके पास है, यू हैव द रिवीजन, यू हैव डन द रिवीजन टेस्ट ऑल्सो, यू विल हैव द एग्जामिनेशंस और फाइनल एग्जामिनेशंस ऑल्सो। सो ये जो क्विज है ना, दिस इज बेस्ड इंटायरली ऑन द रिवीजन टेस्ट एंड द एग्जामिनेशंस। लेकिन अगेन यू हैव टू मेक दिस हैपन, वी हैव टू मेक दिस हैपन एज अ टीम। टुगेदर वी हैव टू वर्क हार्ड एज अ टीम। और जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, हमारे बच्चे भी हमारे हमें देखा देखी हमारी हमें फॉलो करेंगे, एंड दे विल ऑल्सो गेट सीरियस। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, प्लीज़ यू कैन आस्क मी। एक चीज़ फिर से आपको कहना चाहूँगी, एक रिमाइंडर फॉर ऑल द न्यू 9th स्टूडेंट्स, you have to tell your parents to attend the orientation session on 12th April Monday at 11 o'clock sharp. ये आपने ज़रूर अटेंड करना है, बिकॉज वी हैव टू गाइड देम। इफ़ यू वांट टू कम यू कैन ऑल्सो कम, लेकिन प्लीज़ एसओपीज़ का ख्याल रखें, मास्क पहन के आया करें। और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हमें पहले से आप इन्फॉर्म कर दें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ड्यू टू दिस रीज़न आई कैन नॉट कम। अटेंडेंस इज गोइंग टू बी recorded. So best of luck for your final examinations. If you have any questions, kindly ask questions. I'm here, I'm available. um, ओके, अच्छा, समटाइम्स हम लोग जो जैसे हमने नाजरा के लिए किया था कि वीडियो आप बना लें, और वी ओपन द ग्रुप्स सो दैट पेरेंट्स कुड सेंड द वीडियोस इन द ग्रुप्स। क्लास 1 से 5 तक हमने इस तरह से किया, इनफैक्ट 6 और 7 की भी इस तरह से कुछ बच्चों ने वीडियोस बना के भेजी जो हमने आगे फॉरवर्ड की। तो नाजरा के लिए वी कैन डू दैट ऑल्सो फॉर द प्री स्कूल सेक्शन, बट अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा आप लोगों की भी कॉपरेशन की ज़रूरत है। देखिए, हमें भी पता है, हम इस फील्ड में बैठे हुए हैं, हम भी टीवी में एड्स देखते हैं। आजकल इंटरनेट पैकेजेस बड़े अच्छे अच्छे चल रहे हैं। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू गेट अ गुड नेटवर्क, एंड अ गुड नेटवर्क विद अ गुड इंटरनेट पैकेज। बेशक उसमें कॉल्स वगैरह ना हो या जो भी कुछ है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा ना हो। यूट्यूब के लिए ना आप ले मिनट्स, आप जीबी या डाटा जो भी है, लेकिन काइंडली व्हाट्सएप के लिए ज़रूर लें। इस वक्त दुनिया में हर जगह पर यही प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ ये पेशावर में या एलाइड स्कूल में नहीं है। ये सिचुएशन पूरी दुनिया में इस तरह से इस वक्त चल रही है। सो वी हैव टू वर्क हार्ड, एंड अगेन वी हैव टू वर्क एज अ टीम। इंटरनेट के पैकेजेस, स्पेशली व्हाट्सएप का डाटा अपने पास ज़रूर रखें, हमारे साथ इन कांटेक्ट रहें। इफ़ यू हैव एनी फी रिलेटेड इश्यूज, जब तक आप स्कूल आके विजिट नहीं करेंगे हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। प्लीज़, इफ़ यू हैव एनी इश्यूज जो आप हमें टेक्स्ट मैसेजेस पे या वॉइस मैसेजेस पे या कॉल्स के थ्रू नहीं बता सक रहे हैं, या हम बिजी होते हैं, हमसे आपकी कॉल मिस हो जाती है, सो आई वुड रिक्वेस्ट, वी आर हेयर 24/7। We are available on WhatsApp 24/7. We are available in school from Monday till Saturday. सिर्फ फ्राइडे को हम 12 बजे ऑफ करते हैं। रमज़ान टाइमिंग्स विल बी फ्रॉम 8 o'clock to 1 o'clock. We are available here. We are here to help you. कोई भी किसी भी तरह का आपको मसला है, प्लीज़ कम एंड विजिट अस। जब तक पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इसके अलावा, a small message for class 9th and 10th. We have recently received a notification from the KPK government. 9th और 10th की जो classes हैं, they are starting from 19th of April, regular classes, in school classes. So, best of luck for that. और जिन जिन पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन है या बच्चों को कंफ्यूजन है कि जी एग्ज़ाम्स डिले हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स फिलहाल डिले नहीं हो रहे हैं। आप लोग अगर ये जो फेक फेसबुक पे न्यूज़ चल रही होती हैं, लोगों ने लगाई होती हैं, प्लीज़ डोंट फॉलो दैट। जो आपके ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के,
एफएससी के और मैट्रिक के जो डेट्स अनाउंस गवर्नमेंट ने की थी, उसी के अकॉर्डिंगली एग्जाम्स हो रहे हैं आपके। आपका भी जो नया पैटर्न था, जो कि आपके साथ शेयर किया गया था, जो आपकी टीचर्स आपको रिपीटेडली प्रैक्टिस भी कराती रही हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपके एग्जामिनेशंस होंगे, बोर्ड के एग्जामिनेशंस। प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, एंड फ्रॉम 19 April onwards, see you in school, inshallah. Again, whenever you visit any area, सिर्फ स्कूल नहीं, कहीं पे भी आप जाते हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मास्क पहना करें, सैनिटाइजर यूज किया करें, वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन, ट्राई टू अवॉइड लार्ज गैदरिंग्स। अगर आपको जाना पड़ता है, प्लीज किसी से हाथ ना मिलाएं, बहुत ज़्यादा करीब ना बैठें, थोड़ा सा डिस्टेंस में बैठें। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो ठीक, वो तो बिल्कुल सही, अच्छी बात है कि आप ठीक हैं, लेकिन मे बी यू आर अ कैरियर और आपके सिम्टम्स नहीं शो हो रहे। सो दिस न्यू वायरस, दिस म्यूटेंट वायरस इज शोइंग डिफरेंट सिम्टम्स ऑन डिफरेंट पीपल। सो प्लीज बी केयरफुल। ऑल्दो रमज़ान आ तो रहा है, हम पढ़ाई में तो नॉन सीरियस होते हैं, हम एट टाइम्स ड्यूज क्लियर करने में भी नॉन सीरियस होते हैं, बट हम शॉपिंग करने के लिए बाजार ज़रूर जाते हैं। सो प्लीज़, अगर आप बाज़ारों में भी जा रहे हैं, बी केयरफुल, मास्क ज़रूर पहना करें। और दीज आर डिस्पोजेबल मास्क, ये वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं, इसको आप एक दफ़ा यूज़ करें एंड थ्रो देम अवे। ये इसकी लाइफ 24 आवर्स है, इसके बाद ये यूज़ नहीं हो सकता, इसको फेंक दिया करें। इफ़ यू हैव N95, उसमें भी डिफरेंट तरह के आते हैं, जो कि 1 वीक वाले होते हैं, 1 मंथ वाले होते हैं, 3 मंथ्स वाले होते हैं। दे आर वॉशेबल ऑल्सो। कपड़े के मास्क भी हैं, दे आर ऑल्सो वॉशेबल। बच्चों के लिए लेना चाहते हैं तो आप बच्चों के लिए बेबी मास्क भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप वो वाले मास्क ले लें। बच्चों को हैबिट डालें बार बार हाथ धोने की। आप भी जब घरों से आते हैं तो बाहर से ज़रूर हाथ धोया करें। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, एंड वेन एवर यू विजिट स्कूल, अ काइंड रिक्वेस्ट, अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एसओपीज़ का ख्याल रखा करें, मास्क पहन के आया करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कम एंड विजिट अस, वी आर ऑलवेज अवेलेबल हियर टू हेल्प यू आउट। आई होप दिस वेबिनार वाज हेल्पफुल। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, सो वी आर अगेन अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, योर हमारा लैंडलाइन नंबर ऑल्सो, हमारे अपने पर्सनल नंबर्स आपके पास हैं, यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस। समटाइम्स कुछ पेरेंट्स नाराज़ हो जाते हैं मुझसे, मैम आप रिप्लाई नहीं करती, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव एन एक्सक्यूज फॉर दैट ऑल्सो। अम, इतने ज़्यादा मैसेजेस एट टाइम्स होते हैं, इतना, एक तो देखिए हमारे स्कूल के अपने ग्रुप्स भी हैं, और समटाइम्स पेरेंट्स मुझे इंडिविजुअली भी मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो इतने ज़्यादा जब मैसेजेस आते हैं मेरे भी फ़ोन में, और मैं साथ साथ बिजी भी होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, सो समटाइम्स मैं मुझसे भी रह जाता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, या वो चैट बहुत नीचे चली जाती है। सो एक रिमाइंडर भेज दिया करें, नाराज़ ना हुआ करें प्लीज़, देयर इज नथिंग पर्सनल, वी ऑल आर वर्किंग वेरी हार्ड। आई होप यू कैन सी दैट। और हम इसी तरह से इंशाल्लाह आपके साथ कोऑपरेट करते रहेंगे, आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करते रहें, क्योंकि इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है बच्चे, और बच्चों को पढ़ाई से कैसे हमने रिलेटेड रखना है, उनके साथ अटैच रखना है टीचर्स के साथ, और कैसे एक्टिव रखना है। इस वक्त बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है ना, दैट दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक बच्चे को अगर आप पूरे दिन बिठा के यूट्यूब दिखाते रहेंगे ना, वो आपको तंग तो नहीं करेगा, वो बाहर जाने का भी नहीं कहेगा, बट बिलीव मी कि बच्चे जो है यूट्यूब से बहुत गलत चीज़ें भी सीखते हैं। और कुछ कार्टून्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। सो प्लीज़, मैंने कुछ बच्चों को सुना है कि वो हिंदी के वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, दिस इज़ बैड। अगर आप उनको यूट्यूब लगा के दे भी रहे हैं, एक टाइम रखें, या आप उसके ऊपर कोई पेरेंटल कंट्रोल लगाएं, या मैं आपको रेकमेंड करूंगी, एक ऐप है यूट्यूब किड्स, जो कि यूट्यूब की ओरिजिनल अपनी ऐप है, लेकिन दैट इज़ फॉर किड्स। वो आप अपनी यूट्यूब के साथ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें आप पेजेस खुद से डाल सकते हैं, उसमें आप बच्चों की एज डाल सकते हैं, पेरेंटल कंट्रोल्स लगा सकते हैं। सो प्लीज़ बच्चों को ये हिंदी जो चैनल्स आजकल जो कार्टून हिंदी में ट्रांसलेट हुए हुए, प्लीज़ डोंट लेट देम वॉच देम, these are very bad. Again, PUBG भी प्लीज, ये गेमिंग वगैरह, these are bad for their health, these are bad for, PUBG में क्या है, सिर्फ वायलेंस है, तो दिस इज नॉट गुड फॉर देम। बच्चों को वायलेंस से, बच्चों को ये हिंदी लैंग्वेज से, इन चीज़ों से प्लीज जरा आउट ऑफ टच रखें। ये वीडियोस अच्छी भी देख सकते हैं, ये इंग्लिश में वीडियोस भी देख सकते हैं। आप लोगों को यूट्यूब किड्स की मैं एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी, वो डाउनलोड करें,
और अपने ईमेल के साथ इसको कनेक्ट करें। उसके ऊपर आप जो चाहते हैं कि इंग्लिश में, या जो अगर लोकल आपके पाकिस्तानी कार्टून्स हैं जो उर्दू में हैं वो अगर देखना चाहते हैं, बट इंग्लिश करें तो बेहतर है, बच्चे उससे सीखते हैं। बच्चों को लर्निंग वीडियोस के ऊपर डालें। कार्टून देखना चाहते हैं, टाइम एक रख दें, पढ़ाई का एक टाइम रख दें, मदरसे का एक टाइम रख दें, कुरान पाक पढ़ने का एक टाइम रख दें। सो प्लीज़ बच्चों का घर में भी एक ओवरऑल आप एक स्केड्यूल बनाएं। बच्चों को ऐसे ना छोड़ें, बिकॉज हमारे बच्चे हैं, हम भी पेरेंट हैं, और हम एज अ पेरेंट आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इसमें हम फिर भी सुबह उठ के आ जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, हमारी फिर भी एक रूटीन है, हम ठीक ठाक हैं, हम मेंटली इतने डिस्टर्ब भी नहीं है। मगर बच्चे जो है ना, उनकी वो एनर्जी नहीं निकल रही। तो वो फिजिकल उनकी, जब वो आते थे सुबह उठते थे, थकते थे, भागते दौड़ते थे, बातें करते थे, शरारतें करते थे, पी का पीरियड होता था, क्लास में भी उठना बैठना होता था, ब्रेक में भाग दौड़ होती थी, वो एनर्जी उनकी निकल नहीं रही इस वक्त घर पे। बच्चे अग्रेसिव होते जा रहे हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ रहे हैं। सो प्लीज बच्चों की इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें, इनको इन्वॉल्व करें इनकी पढ़ाई के साथ, इनकी जूम की क्लासेस के साथ। देखिए, अगर वो यूट्यूब का चैनल देख सकते हैं, तो वाई नॉट टेक अ जूम क्लास, वाई नॉट टेक देयर व्हाट्सएप वीडियो कॉल क्लास। इन चीज़ों के साथ भी आप लोग इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे होंगे। So thank you all of you. If you have any suggestions, if you have any questions, you can always contact us on Facebook, on our official numbers, on our landline number, और अगर जिन जिन के पास हमारे अपने numbers हैं, आप हमें वहाँ पे भी contact कर सकते हैं। Thank you very much. I hope this webinar was helpful. See you again next time. Allah Hafiz.